students. I think you have seen the video of negative sentences and hope you have learned also how to frame negative sentences. You have to take care of 2-3 things and otherwise it is very simple. Now again I am taking the chapter 17 in grammar, and that is prepositions. It means the words which tell you the position. ठीक है, like the book is on the table. So on the table, on word is showing the position of the book, where it is exactly placed. So there are so many words for this to show the position of noun. Now it has long list, and you have to learn the list on your own so that you can understand that this word is a preposition. You have to underline the prepositions and you have to fill up the blanks with correct prepositions. We can give you two prepositions and you have to choose the correct one, which is telling the correct position where the placing of noun it is. So what is the definition of preposition? A preposition is a word that connects noun or pronoun with other parts of sentence, and it is placed before a noun or pronoun, and it shows the position of the noun. Now Rahul is playing with his pet dog. So those connection दिखा रहा है कि he is playing with dog. The ball rolled under the table. Now position of the noun ball is shown. She is holding a flower in her hand. So कहाँ पर है? In her hand. So now on page number 97, in the green box, a long list of preposition is given and you have to learn that. Now it is your duty to learn the list of prepositions. Now with the solving of exercises, you can understand the what is the meaning of prepositions, and prepositions you are reading from class 1 also. Now according to class 5th your level is high, so the list is increased. अब आपकी लिस्ट में बहुत सारे prepositions है क्योंकि now you are in class 5th. Okay, so I am solving the question number A of page 97. Now you have to see prepositions को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है. सिंपल preposition मतलब one word, in, on, under, before, after, among, along, below, beside, besides, between, down, during, for, from, in, inside, into, near, off, outside, on, since, till, to, towards, under, until, up, with, without. These are single words. So we say these are simple prepositions. और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 2-3 से बने हैं, तो उन prepositions को we say complex prepositions. ठीक है, जैसे according to, along with, away from, because of, due to, in addition to, in case of, in front of, in spite of, instead of, up to, out of. है ना, तो ये दो वर्ड से बने, तो इनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. नाउ इसी के बेसिस पर हमारा क्वेश्चन ए है कि आपको एक तो प्रीपोजिशन सॉर्ट आउट करना है, अंडरलाइन करना है, देन उसको आपको बताना है कि इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स. नाउ सेंटेंस 1 आई एम रीडिंग फॉर यू. Aruna ordered a milkshake instead of an ice cream. Instead of कॉम्प्लेक्स अंडरलाइन करिए और उसके नीचे सी लिख दीजिए. बिंदु वाइप द वाटर विथ अ टॉवल.
विच सिंगल वर्ड है? एज सिंपल. द लिटिल बॉय लर्न टू काउंट अप टू 100. सो अप टू 2 वर्ड से बना है, कॉम्प्लेक्स. सी लिखो. हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड सुजैन? बिहाइंड सिंगल वर्ड, सिंपल. एस लिखो अंडरलाइन करके. माई स्कूल बस स्टॉप्स राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. सो इन फ्रंट ऑफ अगेन कॉम्प्लेक्स, उसको अंडरलाइन करिए और उसके नीचे सी लिखिए. नाउ कम टू पेज नंबर 98. Now what to do in this? You have to fill up the blanks with correct preposition. 2 दिए हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें से you have to choose the correct according to the picture shown to you. आपको पिक्चर में ड्राइंग दिखाइएगी और उससे के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है. सो सी द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड गिव द आंसर. सो एक जार बना है, उसके अंदर एंट और कॉकरोच उसके ऊपर है. तो एक मैंने आपको समझा दिया. अब आप खुद बाकी पोजीशन देख के बताएंगे. द एंट इज इन द बॉटल एंड द कॉकरोच इज ऑन द बॉटल. ठीक है. नाउ सी द पिक्चर सेकेंड. द प्रेजेंट इज फॉर स्वाति एंड इट इज फ्रॉम सोनाली. थर्ड, वन बॉल बाउंस्ड थ्रू द स्टूल and the other bounced under the table. You see the picture, then you come to know. Fourth, the balloon is in the air. होता है हमेशा एयर का इन होता है, वाटर के इन होता है. वाटर के ऊपर या हवा के ऊपर नहीं होता है. इन द वाटर, इन द एयर. इट इज फ्लोटिंग अबाउ द सी. सी के ऊपर उड़ रहा है, अबाउ द सी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर सी देखो, बहुत सारी ड्राइंग्स दिए और उसमें केट है. उस केट का नाम है सूजी और वो प्रिया की केट है. अब सूजी जो है बहुत मस्ती कर रही है, इधर उधर घूम रही है. तो उसकी पोजीशन को के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. सेंटेंस फ्रेमिंग करना है. ठीक है. इसमें पूरा सेंटेंस आपको फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. सो फर्स्ट पिक्चर देखिए, तो उसका मैंने फ्रेम किया है. सूजी इज सिटिंग अंडर द टेबल. सेकेंड, वो फ्रिज के पीछे. इट इज बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर. थर्ड में देखो, कबर्ड के अंदर बैठ गई है. इट इज इन द कबर्ड. फोर्थ में देखो, चेयर के ऊपर बैठ गई है, तो इट इज सिटिंग ऑन द चेयर. नाउ कम टू पेज नंबर 99. पिक्चर नंबर 5 देखिए. तो इट इज प्लेइंग विथ वुल. वुल के साथ खेल रही है. बार बार सूजी सूजी नहीं लिखना, उससे क्या होता है, सेंटेंस बोरिंग लिखता है. समटाइम्स सूजी, समटाइम्स इट. इट वी यूज फॉर एनिमल्स. सो सिक्स देखिए, 2 टेबल्स के बीच में बैठी है. तो सूजी इज सिटिंग बिटवीन द टेबल्स. 2 टेबल्स के बिटवीन में है ना. मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, बिफोर आफ्टर बिटवीन. बिटवीन मीन्स 2 चीज़ों के बीच में. Now again a picture is given. We can give you this type of exercise in exam also. We will give you picture and on based of this picture we can give you fill in the blanks. आपको पिक्चर देखना है, उसकी पोजीशन देखना है जिसके बारे में पूछा है, और उसके बाद उसको fill in the blanks करने हैं. There is a box below the window. देखो बॉक्स विंडो के बिलो है, नीचे है. अक्षय इज बिसाइड द बॉक्स. साइड में खड़ा है तो उसको हम बोलते हैं बिसाइड. ऐसे हमारे साइड में. सो अक्षय इज बिसाइड द बॉक्स. ही पिक्स द बॉल फ्रॉम द बॉक्स. ही किक्स इट विथ द फुट. इट बाउंसेस ऑन टू द टेबल एंड लैंड्स ऑन द फ्लोर. इट रोल्स along the floor and stops under a chair. Now again क्वेश्चन नंबर ई. इसमें आपको टिक करना है करेक्ट प्रीपोजिशन पर. ठीक है. यू हैव टू सी द सेंटेंस, थिंक एंड देन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. फर्स्ट, द मॉल इज ओपन एवरी डे फ्रॉम मंडे टू
Saturday. Second, the children ran out of the classroom. Third, Sajal opened the box with a screwdriver. Fourth, we walked past the restaurant. हम रेस्टोरेंट से आगे निकले. Past the restaurant. Fifth, the bank is opposite our school. हम यहाँ हैं, हमारे opposite school है. So the bank is opposite the school. Rakesh reached office before 10 o'clock. ठीक है, बिहाइंड नहीं होता है. ठीक है, आप दोनों का सोचोगे मीनिंग तो आपको करेक्ट वर्ड समझ में आ जाएगा. नॉक्टर्नल एनिमल्स यूजुअली स्लीप ड्यूरिंग द डे. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 100. व्हाट इज इन दिस? अगेन इन द ग्रीन बॉक्स एक लिस्ट दी है दैट यू हैव टू लर्न. इसमें कहा है कि 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके इन्होंने प्रीपोजिशन बना दिया है और उसमें कभी कभी वर्ब भी हो सकते हैं, कभी एडजेक्टिव्स भी होते हैं. सो वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन लगा के नया प्रीपोजिशन बना दिया है और ये लिस्ट तो आपको लर्न करना पड़ेगी. ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रीपोजिशंस कह सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगेन वी आर डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पेज 100 क्वेश्चन नंबर F. एग्जाम में भी आपको ऐसे फिलअप्स में ही आएंगे. ललिता इज गुड एट मेकिंग ड्रेसेस फॉर चिल्ड्रन. 2. Mohit loves to listen to Sufi music. My 2 younger brothers fight with each other for almost everything. We must never be rude to people who help us. My mother was very pleased with me when I served the guests. My younger brother is afraid of being alone. ठीक है, सो हमने प्रीपोजिशन को भी पढ़ा, समझा. अब आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. 2 टाइम्स इसको लेसन की रीडिंग करिए, बुक एक्सरसाइज सॉल्व करिए. ठीक है, देन वी विल डिस्कस बोथ द टॉपिक इन आवर नेक्स्ट जूम क्लास. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय.